Thank you so much, Ranjita, for having me here, first of all. And this is a very great, such a enthusiastic sport thing you're doing for all the upcoming writers and the poets that I know that people in time will remember you for sure. Because, no, it's an incredible opportunity and a platform for the people who really wanting to do something and they don't know where to go and express. And you are motivating them and giving them the opportunity to do it. I think आप सिर्फ भगवान का काम कर रही हो. So I'm really grateful that I could be a part of it, and thank you for inviting me here and making me so much honored. Thank you. Thank you. Close up. Thank you so much, Chaitanya Kanai ji, for being here. A big round of applause for our celebrity guest and thanks for gracing this occasion. So, क्षितिज यहाँ तक पहुँच चुका है 7 years of excellence and innovation. लंच के बाद हम फिर लौट रहे हैं शब्दों की दुनिया में. With more book launches, now it's time for the second slot of book launches. So now I request the author of this book, Colonel Bhupinder Chib, please come up on the stage. And his book is Parenting That Works. For the launch, I request Vandana ma'am, Ranjita ma'am, Vikas sir and Manoj sir to come up on the stage. Following the ritual on the count of 3, 2 and 1. Good afternoon everyone. Thanks for being here, being part of this momentous day of my life. In fact, a momentous day for many of us. At the very outset, I would like to thank Chief Guest of Honor and my heartfelt appreciation to Ms. Ranjita Sahana for this beautiful platform called Kshitij. Like so many others, it has given me also an opportunity to present my ideas and views to the world outside of me. Standing here amongst the august gathering of authors and poets, it feels special today because it's we all who understand that books don't begin on paper. Books begin in observation. And this book of mine, Parenting That Works, it began in the same way when I observed myself, when I observed my parenting. Like most of the parents, I always used to think that I am doing all things right. I was confident of my parenting. I was thinking that I am preparing my child to meet the real world. But one small, very ordinary incident happened which changed my thought about my parenting. One day, my son, he was doing a very simple thing. He was tying shoelace. And we were getting late. We all were ready. We were waiting for him. So I could see his struggle with the shoelace. So without thinking, I approached. I said, give it to me, I'll do it faster. No dramatics. We tied the shoes, we went on, moved on. But that moment later caught on with me. I realized I was not reacting to my child. I was reacting to the time, the pressure, and my own impatience. I was reacting to my own impatience. Children are born with courage, confidence to try. They don't need to be taught these qualities. But slowly as they grow, these qualities get shaped into something else. And main role is to be played by the parenting and the society. It's not that the parents want to suppress them. It's just that we all live in a differently defined systems of expectations and fears. Don't do this, don't make mistakes, don't get delayed. When we say these kind of things to children, somewhere we are suppressing some childhood qualities. And it is then that the child inside begins to grow differently. And this is what the book is based on. And it's not about blaming parenting or society. It's about understanding how these two affect and influence a child and also an adult. This book is divided into 21 chapters, each talking about a specific human trait. And it's written in a lyrical narrative, inviting readers to find the connect in it.
Within each chapter, it starts with bringing out a childhood quality, how it gets slowly transformed and shifted as we grow into adults. Then it seeks out to find out the reasons for the shift and how much is the parenting to be accounted for it. Then suggest some measures or some ideas to how to nurture those and not let it fade in the children. And one very interesting feedback which I got when I gave it to early readers to review my book. So they said this book has changed their way of thinking about themselves, not parenting. As an adult, this book has helped them understand themselves much better than they used to do it. And that makes sense. It makes sense because we all adults have grown from childhood. We have gone through the stage which this book talks about. So this book, is it for parents? Yes. But it is equally for adults. Because we carry certain patterns, certain reactions of childhood which have got faded in the time as we grow up. This book also connects to the world where children and especially teenagers are growing up today. A world of constant connectivity, comparison, speed, social media. So this book tries to give a gentle ways to nurture their childhood without any pressure, without any comparison and without any fears. This book does not give rules, let me tell you, it does not give rules, it just gives awareness. This book does not aim for perfect parenting, it only aims for conscious parenting and it guides us to grow together with your children. In the end, I would like to leave a question with you all to ponder about. If your child could speak freely, what would they say about your parenting? Something to ponder about, which this book is based upon. And thank you so much. Thank you for listening and celebrating the books together. Thank you so much. Thank you. I hope this book you find a connect in this book and this book finds a place in your hearts. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Up next, we have another book launch for the author, Ansh Sahai, by the title Suffer. So I request Vandana ma'am and Ranjita ma'am to come up on the stage. And also, Ansh is very close to Ranjita ma'am, so I guess no words can describe her feelings for him. So this, I would like to give her the honor to introduce him. Thank you. अंश इज देयर? तो ठीक है, जब तक अभी नहीं है तो मे आई रिक्वेस्ट स्वाति शर्मा, हर बुक दिल जज्बात और जिंदगी, हर सेकेंड बुक अंडर क्षितिज पब्लिकेशंस एंड आंटी अंकल आए हुए हैं स्वाति के पेरेंट्स, so would request both of them to come on stage with us to launch her book. Please, uncle, auntie. On the count of 3, 2, 1 and go. A big congratulations to you, Swati. Now over to you. एक encouragement, क्योंकि सबकी बुक आनी है और एक ऑथर के लिए आज का दिन बहुत स्पेशल होता है, तो at least we can support each other because सबकी बुक नहीं लॉन्च होनी है, ठीक है? तो we all are family. थैंक यू रंजीता दी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपके सपोर्ट के बिना ये सब बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब मैं अपनी ही बुक में से एक बहुत अच्छी कविता आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। पहली बुक का टाइटल है क्या तुम कभी समझ पाओगे। सुनो,
क्या तुम कभी समझ पाओगे मैं क्या चाहती हूँ तुमसे और तुम क्या हो मेरे लिए? बस यही दो सवाल हैं जिनका उत्तर मैं ढूंढ रही हूँ अपने अंतर्मन की गहराइयों में। कभी खामोशियों में ढूंढती हूँ जवाब, कभी तुम्हारी आंखों में, कभी बीते लम्हों की परछाइयों में, तो कभी अधूरे ख्वाबों की सच्चाइयों में। तुम्हारी एक मुस्कान में सुकून है और एक चुप्पी में तूफान भी। मैं जानती हूँ तुम हो तो कुछ भी अधूरा पूरा लगता है। शायद तुमने कभी कहा नहीं पर महसूस तो किया है ना। मैं भी नहीं कह पाई सब कुछ पर चाहा है तुम्हें हर लम्हा हर दिशा। अब इन सवालों के उत्तर शब्दों से नहीं मिलते, दिल से दिल तक जो रास्ता है वही कहीं छुपे हैं सब जवाब। थैंक यू। बच्चा जितनी उससे अपनी मम्मा की बुक को देख रहा था, बेटा स्कूल की भी बुक्स ऐसे ही देखता है। इसकी कहानी मैं बताती हूँ, ये बचपन से ये आ रहा है और ये इसने इतना हंगामा मचाया था। ये जब 2 साल या 3 साल का था इसको बुलाया था शूट के लिए और मैंने सोचा कि मैं अपने कैंट में करवा लूँ। इसने जीना आराम कर दिया था, उसके बाद से मैंने कभी इन हाउस कुछ काम नहीं किया। Now it's time for another book launch. So now I request the author Ansahai for the launch of his book Suffer. May I request Manoj ji to be here on stage and अंश is मेरा भतीजा है और भैया लोग भी आए हुए हैं। They have come all the way from धनबाद। So विजय सहाय and अजय सहाय and भाभी लोग, तो फिर I feel कि फैमिली के साथ, और he is just 19 years old, तो बच्चे की बुक रिलीज है तो फैमिली का होना बहुत जरूरी होता है। मैं गोवा हूँ इसकी, तो आई वुड लाइक टू हैव भैया भाभी ऑन स्टेज। On the count of 3, 2, 1 and go. Well, I thought today in the hall I am the youngest one. Thank you to Ranjita ma'am for giving me this opportunity and for my book launch. तो ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, बस छोटी सी एक कविता मेरे बुक से आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ज़्यादा बड़ी ये नहीं है। कविता का शीर्षक है इंसान। तो मैं ढलती सी शाम हूँ, हाँ भले थोड़ा सा आम हूँ, किसी घाव सा एक निशान हूँ, कहीं दूर रात के अंधेरे में जगमगाता किसी तारे के समान। कभी कभी शायद कमाल हूँ या कभी कभी शायद नाकाम हूँ, किसी के दुखों के लिए शायद एक आराम हूँ, भले खुद के दुखों से ही परेशान हूँ। दुनिया के रीत रिवाजों से थोड़ा अनजान हूँ, अभी शायद उम्र कच्ची है मेरी, थोड़ा तो मैं नादान हूँ। गलतियां तो हो जाती हैं कहीं, आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। थैंक यू सभी को। Now we are joined by 2 more guests of honors. First one, Mr. Ankit Nagpal, celebrity groomer and director of. A big round of applause for Ankit. And we are also joined by Miss Dishi Bhatnagar, fashion model and social media influencer. Please welcome Miss Vandana Yadav for the book discussion. And this session will be conducted by Miss Ranjita Sai Ashish. सभी का नमस्कार। और एक बहुत ही खूबसूरत किताब जो आई है, जिनकी राइटर शी इज सिटिंग हियर विद अस, एडिटर। दिस इज द बुक सैनिक
की व्यथा था। हेलो। So this is the book for us being, and I am also featuring in this book as an army wife. और 11 ladies across India have shared their story, their struggles being army wife, और उनको कंपाइल किया है वंदना जी ने। इस बुक का ग्रैंड लॉन्च साहित्य अकादमी में 3 जून को होने वाला है, 3 जनवरी को होने वाला है। एंड दिस बुक इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज काफ़ी सारे नोशंस ये क्लियर करेगी जो एक आम धारणा बनी हुई है। तो इसी बुक का वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन। वंदना जी, आप सैनिक पत्नी हैं, मैं भी सैनिक पत्नी हूँ, और हमारे साथ कई सेक्रीफाइसेस जुड़े हैं। पर जब हम बहुत किसी से भी जब पहली बार मिलते हैं सिविल में, तो सबसे पहले सुनने को ये मिलता है कि वाह, तुमको कैंटीन कार्ड फ्री में है आपको कार्ड्स फ्री में मिल रहे हैं, आपको क्वार्टर मिल रहा है, आपको कितनी ऐश वाली आपकी ज़िंदगी है। तो इस किताब के माध्यम से हम क्या बताना चाह रहे हैं और आप क्या सोचती हैं? आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले क्षितिज का धन्यवाद भी करना चाहती हूँ जिन्होंने यहाँ बुलाया, और क्षितिज को बहुत बधाई भी देना चाहती हूँ। रंजीता, आपको बहुत बधाई 7 साल लिट फेस्ट चलाने के लिए भी और क्षितिज को स्थापित करने के लिए भी। आज क्षितिज का इतना बड़ा परिवार बन गया है कि ये पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ है और सबके चेहरे इतने प्रफुल्लित हैं, खुश हैं, सब उसे देखकर अच्छा लग रहा है। जी धन्यवाद। अब खाना सबने खाया हुआ है, थोड़ी तालियां बज सकती हैं, है ना? अब अगली बात पर आते हैं कि आपने पूछा कि इस पुस्तक की जरूरत क्या थी या मैंने इसे क्यों आकार में ढालने का प्रयास किया। मेरा बचपन बीता है सैनिकों के बहादुरी के किस्से पढ़ते हुए। हम सब ने उनकी वीरता, बहादुरी और त्याग, बलिदान के किस्सों को जाना है। जब मैं सैनिक पत्नी बनी तब मैंने ये जाना कि किस्से सिर्फ उनके नहीं हैं, उनके परिवारों के भी हैं, बस वो अनकहे रह गए हैं। वर्ल्ड वॉर 2 की एक किताब मैं हमेशा बताती थी मेरी बिटिया को कि देखिए हमने ये किया, कारगिल के टाइम पे हमारी इस तरह ड्यूटीज लगी थी, तब मैं ये कर रही थी, ऑपरेशन पराक्रम के टाइम पर मैं ये कर रही थी। और मेरी बेटी हमेशा मुझे कहती थी कि मम्मा ये किस्से एक दिन आपके साथ खत्म हो जाएंगे क्योंकि इनका कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। एक दिन वो कोई वर्ल्ड वॉर 2 की किताब पढ़ रही थी, मेम साहब डायरीज। तो वर्ल्ड वॉर 2 की लिखी हुई कुछ डायरीज के पन्ने और कुछ लेटर्स मिल गए थे किसी पब्लिशर को, उनको सहेज कर एक किताब का आकार दिया गया था। मेरी बिटिया ने मुझे कहा कि मम्मा, मेरा आपसे आग्रह है कि ये बातें फिर होती रहेंगी, आज आप मुझे सुन लीजिए। मेरी बिटिया ने कहा कि मम्मा, आप जो बाकी लोगों के लिए बताती थी कि आपने उनके परिवार के लिए जो परेशानियां थी किस तरह दूर किया, तो बहुत सी परेशानियां ऐसी रही होंगी जिन्हें और महिलाओं ने भी दूर किया, और कुछ किस्से ऐसे होंगे शायद हम में से किसी को भी मालूम नहीं, उनको लिखा जाना चाहिए। ये मेरी बिटिया का एक दिया हुआ मुझे एक सजेशन था जो फाइनली पिछले साल एक किताब के तौर पे आया जिसका नाम था सैनिक पत्नियों की डायरी। पर डायरी तो वो नहीं होती ना जो खत्म हो जाए, क्योंकि पत्नियां बहुत हैं, जितने सैनिक हैं उतनी ही पत्नियां हैं। सॉरी। तो वो किस्से, कुछ इतने महत्वपूर्ण किस्से जो रह गए, उन्हें इस पुस्तक में संकलित किया है। पूरे भारत से, पूरी सेना परिवार से 11 महिलाओं का मैंने चुनाव किया और इसमें उन 11 महिलाओं की अपनी ओरिजिनल डायरीज हैं। अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो जान पाएंगे कि ऐसा क्या था जो वो एक सैनिक पत्नी होने के नाते चैलेंज जी रही थी। देखिए, हम
जैसा हिंदू धर्म में कहा जाता है, गीता कहती है कि मैं अकेली आई हूँ, अकेली ही जाऊंगी। अकेले पैदा होते हैं, अकेले ही हमारी मृत्यु होती है। तो जब हमें ईश्वर और प्रकृति हमें एक अलग व्यक्तित्व के तौर पे पैदा करता है, बनाता है, जीवन जीने का अधिकार देता है, तो सैनिक पत्नी होते ही वो अधिकार अचानक खो जाते हैं। जो यहाँ पे सिविल से महिलाएं हैं वो ये जानती हैं कि शादी के बाद वो सीता भाभी, गीता भाभी या मनोरमा दीदी रहती हैं। एक फौज ऐसी है जो आपको मिसेस सो एंड सो बना देती है। यहाँ पे आपका नाम और सरनेम सब खो जाता है। आइडेंटिटी बहुत बड़ी चीज है। मैं अकेला आया था और अकेला जाऊंगा, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि जब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग आई, मेरे यानी हर आर्मी ऑफिसर की वाइफ या हर आर्मी मैन की वाइफ की बात मैं कर रही हूँ, कि जब एक फौजी की पोस्टिंग आती है, वो यहाँ से एक पद पे है और अगली जगह पे एक पद पे जा रहा है। बच्चों के लिए यहाँ पे स्कूल है, अगली जगह होंगे। मुझे हर बार नई अपनी पहचान बनानी है। अगर मैं वर्किंग पर्सन हूँ तो मुझे हर बार एक नया इंटरव्यू देना है, और उस एटमॉस्फेयर में जहाँ मुझे एक घर मिलता है और गाड़ी मिलती है, पर मुझे उस एनवायरनमेंट में अपनी जगह बनानी है। ये उस संघर्ष की दास्तान है जी। वंदना जी, आपने 11 महिलाओं का चुनाव करा। कहानियाँ जो है, हम लोग जब गुजरते हैं लद्दाख में, अगर हस्बैंड है तो हम लोग होम पोस्टिंग, आप बोल लीजिए, कहने को होम पोस्टिंग होती है, पर बच्चों का देखभाल करना, सब चीज़ करना, तो एक आम महिला से ज़्यादा स्ट्रगल है। लोग कहते हैं कि परिवार में सास है, ननद है और उनके साथ रहने को चैलेंज कहते हैं, पर असली चैलेंज वो है कि आपको सबके साथ रहना है और आपका पति ही नहीं है आपके पास, और वो पति इस उम्मीद में है कि हमारी पत्नी जो है वो सबका ख्याल रखेगी, तो आप उससे लड़ भी नहीं सकते। वो प्रिविलेज भी नहीं है हमारे पास कि हम पति से लड़ें, कि हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमें ही देखना है, ही इज़ नॉट अवेलेबल, ही इज़ देयर ऑन बॉर्डर्स, तो हम उन्हें घर की बातें भी डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली ही विल गेट टेंस्ड। तो कितना, यानी बहुत चीज़ें, बहुत गहराई हर लेडी में एज अ आर्मी ऑफिसर वाइफ हम लोग झेलते हैं। हर दिन एक पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करते हैं क्योंकि वहाँ बॉर्डर पे भी कुछ हो सकता है, यहाँ भी आप बच्चों की रोज़, छोटे छोटे बच्चों को लोग, मैं जब लेडीज से मिलती हूँ वो मुझे एक्सक्यूजेस देते हैं, तो जो एक्सक्यूजेस वो देते हैं वो हमारे लिए एक्सक्यूज है ही नहीं, हम लोग इतने चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं। तो कितना ज़रूरी है हमारी कहानी बाहर लाना। बहुत खूबसूरत सवाल है। मुझे इसका जवाब देने की जरूरत रंजीता जी को नहीं है क्योंकि वो खुद इस किताब में शामिल हैं, इन्होंने खुद उसे लिखा है। पर आप सबको ये बात बताना चाहती हूँ कि बहुत कम होता है कि हम अपने इन-लॉज या पेरेंट्स के साथ रहें। बच्चे पढ़ रहे होते हैं और हम एसएफ क्वार्टर में रहते हैं। एसएफ क्वार्टर यानी सेपरेटेड फैमिली क्वार्टर्स। वहाँ माँ भी वही, बाप भी वही, है ना। माता पिता की भूमिका तो सिंगल पेरेंट बनकर एक महिला निभा ही रही है, दादा दादी नाना नानी भी, क्योंकि छुट्टियों में बड़े बच्चे की छुट्टी है, छोटे की नहीं है। छुट्टी है तो पापा घर आ गए या हम उनके पास जा रहे हैं, तो वो परिवार से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। एक तो ये कारण है, और दूसरा कि पति को इसलिए नहीं बता सकते कि वो तो खुद ही सरहद पे बैठा है। अगर उसका मन अशांत रहा या उसको घर की चिंता रही तो वो क्या देश की रखवाली करेगा। तो उसकी चिंताएं बल्कि हम शेयर करते हैं। एक रियल लाइफ स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ कि फौजी फोन पे बात हो जाती है, ये तो हम सभी को मालूम है। तो एक दिन मैं बात कर रही थी, उस दिन इनका मूड कुछ अच्छा नहीं था। मैंने कहा क्या हुआ, 2-3 बार पूछा, पत्नियां जानती हैं पति के मन को टटोलना, तो मैंने पूछ ही लिया आखिर कि क्या है जवाब, आज आप ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे। इन्होंने बताया कि 2-2 की टुकड़ी में पेट्रोलिंग होती है, ये ज़्यादातर सब लोग जानते हैं। इन्होंने बताया कि हमारे 4 बंदे पेट्रोलिंग पे थे, तो आगे वाले 2 लड़के जो पेट्रोलिंग कर रहे थे, एक लड़के का पैर माइन पे पड़ा और माइन फट गई
और उसका पैर थाई से निकल के हवा में उड़ा और गोल घूमता हुआ सामने आके धड़ाम से गिरा और एक बंदा बिल्कुल उड़ गया। जो उड़ गया उसकी कहानी तो फिर कभी, आज जो लड़का बच गया था उसकी बता रही हूँ कहानी कि वो लड़का जा रहा था अगले हफ्ते छुट्टी, उसकी शादी होनी थी। तो ये किस्से जब हम तक पहुंचते हैं तो जिस माइंडसेट में वो काम कर रहे हैं उन्हें मैं नहीं बता सकती कि तुम्हारी माँ ने आज मुझे क्या कहा, किस तरह मेरे बच्चों को पीट दिया बिना मतलब। तो ये कहानियां वहां मैं नहीं बता सकती, यानी यहाँ के किस्से मुझे अपने पास दबा के रखने हैं और उनके दर्द में मुझे शामिल रहना है। तो एक महिला की कितनी जिम्मेदारी हो जाती है और इसके साथ सैनिक जो है उनका बलिदान कहीं न कहीं रिकॉर्ड हो रहा है। जो हम लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनका ये बलिदान कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा। यहाँ आइसोलेशन है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, हम सब जानते हैं ना। समाज इसलिए कि हमारे पास बात करने के लिए, मन बहलाने के लिए, कहने और सुनने के लिए लोग हैं, पर यहाँ पे फिल्मों वाला इश्क नहीं है। यहाँ पर अकेले रहने की जिम्मेदारी ज्यादा है और उस जिम्मेदारी के साथ आता है अकेलापन कि आप वो बातें किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं। तो इस सब को कहा जाना बहुत जरूरी था। हाँ, हम लोग एक दूसरे को समझती हैं, एक दूसरे का दर्द बांटती हैं, पर कितना, वो भी तो दर्द में है ना। तो ये कहानियां इसलिए जरूरी है कि देश को परोक्ष रूप से जो महिलाएं अपना सर्वस्व दे रही हैं उनकी कहानियां बताई जानी जरूरी थी। एक और बात मैं बता दूं कि जिस समय यहाँ पे कारगिल हुआ तो जो देश के एक सेनानी दूर देश में पोस्टेड थे, वहां का माहौल कैसा था, उन पे किस तरह स्पाई किया जा रहा था। एक ऐसी महिला भी इस पुस्तक में शामिल है कि उनकी लाइफ किस तरह बदल दी गई थी, कैसे वो एक फॉरेन पोस्टिंग पे गई थी और वो फॉरेन पोस्टिंग उनके लिए जेल बन गई। तो ये किससे आपको पता होने चाहिए कि वो ऑफिसर तो रोज यूनिफॉर्म पहन के जा रहा है ड्यूटी पे, व्हाट अबाउट द लेडी, उसको ये अकेलापन, ये त्रासदी, ये भुगतान क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो सैनिक की पत्नी है। जो दूर से दिखाई देता है ना मेम साहब है, वो मेम साहब ही नहीं है। जैसे बोला जाता है कि फौजियों को ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई आपको इमोशंस कंट्रोल में रखने हैं, सब चीज़ें रखनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि फौजियों से शादी करने के बाद हम ही लोग अपने इमोशंस कंट्रोल कर रहे होते हैं। हमें बिना ट्रेनिंग के भी हम उस, बोलते हैं ना, भट्टी में झोंक दिए जाते हैं कि आपको करना ही है, यू हैव टू फेस। और वो हर दिन तप रहे हैं हम लोग, एंड विद द होप ऑफ पॉजिटिविटी कि ठीक है कल अच्छा होगा, परसों अच्छा होगा। तो कितना ज़रूरी है पॉजिटिव रहना। मुझे हर कोई बोलता है कि मैम आप इतनी पॉजिटिव क्यों हैं? तो ये पॉजिटिविटी इसीलिए आती है क्योंकि वी नेवर थिंक ऑफ द फ्यूचर। हमारे लिए अगर हस्बैंड छुट्टी पे आता है तो वो 30 दिन इम्पोर्टेंट होते हैं, इट्स नॉट, क्योंकि साल में 60 दिन अगर मिल रहा है तो दैट 60 डेज आर प्रेशियस टू अस। तो हम बाकी के दिनों का और महीनों का नहीं सोचते। तो दैट्स व्हाट हैव हेल्प्ड मी टू बी पॉजिटिव। तो इतनी महिलाओं का आपने स्टोरीज में डाला है, तो वो जो कॉमन फैक्टर पॉजिटिविटी, उसके बारे में थोड़ा सा। सैनिकों के बारे में एक बात है कि वो अपने खेतों की रखवाली नहीं कर रहे हैं कि पड़ोसी ने खेत की सीमा आगे बढ़ा दी और आप कहेंगे पीछे कर लेगा, नहीं, वो देश की सुरक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में जहाँ पे कोई नया, देखिए यहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है कि हमारी फैक्ट्री में हम आज ये नया चीज बनाते हैं और हमारा हो सकता है मार्केट में रिव्यू अच्छा मिले, नहीं, यहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं है, यहाँ सिर्फ देश की रक्षा है। और क्योंकि वो लोग ट्रेंड हैं, फौजियों को ट्रेनिंग मिलती है, वी आर नॉट ट्रेंड, पर हमसे उम्मीद की जाती है कि हम उनसे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। यहाँ जितनी भी फौजियों की पत्नियां हैं उनके चेहरे पे स्माइल देख के मुझे समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ, किस तरह कन्वे हो रहा है। तो वो जो हम अनट्रेंड लोग हैं और हमसे ट्रेंड लोगों की तरह बिहेव करने की उम्मीद की जाती है ना, तो वहाँ सिर्फ एक पॉजिटिविटी ही हमें जिंदा रखती है। देखिए कभी भी एक खराब न्यूज आ सकती है, सड़क पे एक्सीडेंट तब होगा या आपकी गलती होगी या सामने वाले की गलती होगी, हमारे यहाँ गलती किसी और की होगी और देश के नाम पे उसे हम भुगत रहे होंगे।
यानी सैनिक भुगत रहा है या उसका परिवार भुगतेगा। तो जब माहौल इतना टाइट है, हर वक्त है, देखिए मेरे से पहले वाले जो पीढ़ियां थी उन्होंने भी ये जिया, हमने भी जिया, हमारे बाद वाले फौजी भी इसी टेंशन में रहेंगे। तो एक ही चीज बचती है कि जितना है उसको जी भर के जी लें। एक बार मुझे किसी ने कहा था, आज आपको मेरे गेटअप से समझ आ जाएगा, मेरे साथ रंजीता जी बैठी हैं और यहाँ जितनी सैनिकों की पत्नियां हैं उनको आप देखिए किस अलग अंदाज में तैयार होती हैं। आपको लाखों की भीड़ में वो अलग दिख जाएंगी। मुझे एक बार किसी महिला ने कहा था, जो बहुत शायद पैसे के हिसाब से अमीर है, उसने कहा था कि अभी क्या प्लास्टिक पत्थर पहनती हैं, सोना वोना पहना करें। और मैंने उन्हें कहा था कि आप बस सोना ही पहन सकती हैं, आप जानती नहीं कि इन प्लास्टिक पत्थरों में आनंद कितना है। तो हम उस प्लास्टिक और पत्थर की कीमत पर सफल होना जानते हैं और सकारात्मक रहना जानते हैं। जी थैंक यू। और ऐसी एक महिला जिसे मैं बहुत करीब से जानती हूँ, जो बहुत सकारात्मक रहती है, और इस पुस्तक में मैंने सबसे पहले उसे इसीलिए लिया क्योंकि वो बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन है। हम लोग अपना करियर नहीं बना पाते, बहुत बड़ा गर्व है ये कि अगर मुझे हर 2 साल के बाद, देखिए सिविल में अगर आप किसी जॉब में जाते हैं, एक बार आप घुस गए, आप रिटायर होंगे तब तक रह सकते हैं। हमें हर दूसरे साल एक नया इंटरव्यू देना पड़ता है। एक लड़की जब अपना करियर बनाती है तो घर से निकलती है, या एक लड़की शादी होने के बाद नए माहौल में जाती है। हमें हर दूसरे साल एक नए माहौल में जाना है और अपने आप को प्रूव करना है कि एक्सेप्ट मी, आई एम द बेस्ट। ये कंडीशन हमारे साथ होती है ना, एक पीयर प्रेशर जिसे कहते हैं। तो एक ऐसी महिला जिसने इस पीयर प्रेशर को न सिर्फ झेला, उसे जीता, बल्कि औरों के लिए भी वो मिसाल बन गई है। वो रंजीता मेरे सामने बैठी है। तो क्षितिज के लिए और इतने लोगों की मिसाल बनने के लिए उन्हें बहुत बधाई, और इस पुस्तक में शामिल होने के लिए उनका आभार भी और उन्हें बधाई दी। थैंक यू सो मच। और 15 चैप्टर्स हैं मेरे इसमें, और काफ़ी सारी अनकही कहानियां हैं जो लोगों ने अभी तक नहीं सुनी। आई हैव रिवील्ड माई लाइफ जर्नी, my 22 years of marriage, 22 years in army, so lot of stories are there। और आप लोग पुस्तक जो है यहीं पर है, it's for sale, if you want you can collect it from there। मैं साइन कॉपी दे दूंगी, मैं साइन कर दूंगी, और पढ़ के बताइएगा कि कहानी जो आप जिस ग्लैमर को देख रहे हो या जितना आप रंजीता को जानते हो उससे ज़्यादा आप इस बुक से जानोगे। वो 15 चैप्टर मेरी कहानी के, जहाँ पर हमने टेररिस्ट भी देखे हैं, जहाँ पे हमने स्टोन पेंटिंग भी देखी है। आई हैव फेस्ड इट ऑल, सो lot many things are there। So thank you Vanna ji for bringing all those memories, और बोल लीजिए all those incidents here in this book, and hope everybody likes it। 11 ladies are there who have put their heart in this book, and आप सब साहित्य अकेडमी 3 जनवरी को अगर दिल्ली में है तो do join us for the launch of this book। Thank you so much। थैंक यू सो मच। 3 जनवरी 2:30 पर कार्यक्रम शुरू होगा साहित्य अकेडमी सभागार, तृतीय थल यानी 3rd फ्लोर पर। थैंक यू। क्षितिज वाले तो आएंगे, उनको आए नहीं तो फिर तो छोड़ूंगी नहीं। थैंक यू वन्ना जी फॉर बीइंग देयर। करती हूँ आप सभी का ऑफिशियली, मिस्टर मनोज जी, विकास जी और श्रीमती रंजना मजूमदार जी। समय बहुत थोड़ा है और बात बहुत गहरी है, और थोड़े से समय में बहुत कुछ बात करनी है। जैसा कि आज का टॉपिक हमें दिया गया है कि शब्दों का संगम परंपरा से परिवर्तन तक। कवि बिहारी जी ने कहा था कि सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। अगर शब्दों को हम गहराई से देखें तो बहुत गूढ़ भी होते हैं, बहुत ज्ञान भी छुपा होता है। तो मनोज जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि जैसा कि टॉपिक है कि परंपरा से आज परिवर्तन तक, तो हम सब जानते हैं कि बहुत सारी विधाएं होती थी जिनमें लिखा जाता था। वो कौन सी प्रमुख विधाएं हैं जिनमें
परंपरा के पारंपरिक तौर पर हम लिखते थे, उनके बारे में हम थोड़ा समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। मैं कविता के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे कि पहली पंक्ति ही कविता की जो निकली वो अनुष्टुप छंद बनी गई, उसी में वाल्मीकि रामायण रची गई, महाभारत रची गई, पुराने ग्रंथ रचे गए। उसके बाद वो कालिदास ने जब छंद के छंदबद्ध किया, छंदों की पुस्तक निकाली तो 36 प्रकार के छंद थे। जी आज वो बढ़ते बढ़ते 1000 से अधिक हो गए हैं। तो वो बाद में लोग लिखते रहे। छंद कोई विशेष चीज नहीं है, मैं जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि आम लोगों में धारणा कि छंद सीखना या छंद जानना बहुत कठिन है, छंद में कैसे लिखा जा सकता है। तो परंपरा की जो लोग बात करते हैं, परंपरा तोड़ना है तो वो तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि छंद कोई विषय नहीं, वरना ये 1000 कैसे हो जाते हैं। परंपरा होती तो वही रुकी रहती, यानी वो टूटती अपने आप जा रही है, लेकिन इसलिए तोड़ा नहीं जा सकता कि छंद लय का दूसरा नाम है, लय ही छंद है। अब लय को हम एक मात्राओं में निरूपित कर देते हैं तो उसको छंद कह देते हैं। अब कोई नई लय आ गई, मान लिया पहले से कोई छंद नहीं, नई लय आ गई तो नया छंद बन गया। तो हम जो लिख रहे हैं, अगर हम कोई छंद नहीं जान रहे हैं, छंद का हमको कोई ज्ञान नहीं है, जैसे अभी हमारे एक गायक महोदय थे, वो भी गए थे, और अभी हमारी कविता जी ने कुछ कविताएं सुनाई तो उनको छंद ज्ञान भले हो, लेकिन उनकी सारी कविताएं लयबद्ध हैं, तो हम नया छंद उसको नाम दे सकते हैं। तो छंद 1000 ऐसे ही होगा, अगर लयबद्ध है तो छंदबद्ध है, या तो हम उसमें कोई छंद ढूंढ के आपको दिखा देंगे, अगर नहीं भी मिल पाता है तो नया छंद हो जाएगा। छंद बनाया गया लय के लिए कि लय बनी रहे। जैसे हमारे लोकगीत थे, जुग जुग जीवे ललनवा, या महिलाएं तमाम लोकगीत गाती, गांव में जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानती हैं, छंद तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उनके सारे गीत, सारे लोकगीत गाँवों के, भले उनका तुकांत भी न मिलता हो, लेकिन लयबद्धता अनिवार्य रूप से है, लयबद्धता है। तो जहाँ तक परंपरा की बात है, लय को छोड़ के हम कुछ कोई रचना नहीं कर सकते। तो परंपरा तोड़ना नहीं है, अगर आप कुछ नया ला रहे हैं लयबद्ध है तो उसको नया छंद का नाम दे दिया जाएगा, लेकिन लयबद्धता, मेरे विचार से लयबद्धता को नहीं छोड़ा जा सकता। बिना लय के तो जीवन ही नहीं है, प्रकृति नहीं है, बिना लय के प्रलय हो सकती है और कुछ नहीं। आप कह रहे हैं कि हम छंद मुक्त होकर भी अपनी बातों को इस परिवर्तन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। वो लय में लिखा है, वो तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, लयबद्धता तो है उसमें भी। विरला जी ने लिखा तो पूरी उनके छंद मुक्त वहीं से शुरू हुआ, और उनके सारे छंद मुक्त में लयबद्धता तो है ही, बिना लय के तो कुछ नहीं है। आज एक और बात मेरे मन में बहुत अच्छी क्लियर होगी, क्योंकि अक्सर मैं अपने इंट्रोडक्शन में कहा करती हूँ कि मैं किसी विधा में पारंगत तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, दिल की बातों को और अपने मन के भावों को विचारों में पिरोकर श्रृंखला में सबके सामने प्रस्तुत करना मुझे बखूबी आता है। तो आज आपने मुझे बताया कि कोई भी बात जो थोड़े से भी लय के साथ है, चाहे भले ही थोड़ी छंद मुक्त भी है, वो अपने आप ही एक लयबद्ध उसमें। देखिए यहाँ पे सैनिक लोग बहुत हैं, मैं बहुत उदाहरण आपको देना चाहूँगा। जैसे आप बंदूक या कोई हथियार चलाना सीखते हैं, बिना हथियार चलाना सीखे वो छंद, आप बहादुर नहीं हो सकते, लेकिन हथियार चलाना सीख कर भी बहादुर हो जाएंगे जरूरी नहीं है। सारे लोग वहाँ से, ऐसा नहीं कि युद्ध भगोड़े नहीं होते या सारे लोग वैलेंट्री अवार्ड पा जाते हैं। तो छंद तो एक स्ट्रक्चर है, वो सीखा जा सकता है, लेकिन कविता सीखी नहीं जा सकती। वो अपने अंदर भाव है, वो सबके अंदर है, तो वो उसमें उसकी जान जो है वो आपका भाव है। तो वो स्ट्रक्चर ही है जो सीखने की बात करते हैं। छंद है वो तो स्ट्रक्चर मात्र है, वो तो उसका एक, उसको ढालना है एक तरीके। जैसे हम गोली चलाना सीख लेते हैं, बंदूक चलाना सीख लेते हैं, लेकिन बहादुरी नहीं सीख सकते, उसी तरीके से। मेरा अगला सवाल रंजना दीदी आपसे, मैंने आपको बहुत बार सुना है, बहुत मंचों पे सुना है, और आपकी आवाज़, अंदाज और लय के बारे में अगर मैं कुछ कहूँगी तो बहुत ही वो छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। तो आप आज के जो हमारे रचनाकार, साहित्यकार यहाँ मौजूद हैं, नवांकुर हैं, जैसे अभी हमारा वो अंश बच्चा आया था, आप उनसे क्या कहना चाहेंगी कि इस परंपरा और परिवर्तन को साथ लेकर चलने के लिए वो क्या ऐसा करें कि परंपरा भी ना टूटे और परिवर्तन जो हो रहा है, बदलाव जो हो रहा है, वो भी इसके साथ जुड़े? देखिए, हमने बहुत पहले पढ़ा था कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो साहित्य क्या है? हमने, आप बात कर रहे हैं परंपरा की और परिवर्तन की, शुरू से जो होता आया है, कहते हैं ना कि परिवर्तन तो
एक नियम है। तो पुरानी चीज़ें हटेंगी तो नया आएगा कुछ, अगर पुराना कुछ नहीं हटेगा तो नया नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप परिवर्तन ही ना करें, या जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारी परंपरा है वो साहित्य की जड़ है, और परिवर्तन जो है वो उसका विकास है। इस विकास को हम कैसे रोकें? हमको क्या रोकना है? रोकना नहीं है, रोक नहीं सकते, रोकना भी नहीं चाहिए। आपने जैसे छंद की बात कही है, जो छंद मुक्त लिखते हैं उनमें आपने लय की बात करी। सच में ही आजकल बहुतों को मैंने देखा है कि वो छंद मुक्त लिखते हैं, लेकिन एक ही पंक्ति को 4 पंक्तियों में तोड़ के लिख दिया। जब इस तरह से लिखा जाएगा तो ना उसमें लय आती है, ना उसमें मात्रा आती है, ना उसमें हम जो कहते हैं प्रवाह। आप किसी उदाहरण से किसी फ्लो को, जैसे मैं क्लास में जैसे पढ़ा रही हूँ तो बहुत समय किसी ने बोला कि नहीं मैम ऐसा तो नहीं है कि हम छंद सीखेंगे नहीं तो हम नहीं कर सकते, तो ऐसा अगर सोच के देखो, तो बोले छंद मुक्त हम करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, छंद मुक्त में वो बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है लय की इसकी। मैं कहा ठीक है, एक कविता की लाइन दो। तो कहे नहीं आप ही बताइए। मैंने कहा चलो मैं तुमसे चांदनी रात में बाहर मिलती हूँ, तब मैं तुमसे खूब बातें करूँगी। अब इस चीज़ को अगर मैंने इसी तरह से लिख दिया 4 पंक्तियों में, क्या वो कविता होगी? आपने कहा छंद मुक्त यही है कि कविता उसको तोड़ के लिख दीजिए, कविता होगी? तो कविता नहीं है, तो गद्य है, निबंध है, उसको उस तरह से रखा गया है। और परिवर्तन की बात करेंगे तो जैसे अमृता प्रीतम का था, महादेवी वर्मा ने लिखा है ना कि तो आपका पानी क्यों नारी आपका पानी। मैं इस उम्र में भी मैं कह रही हूँ कि मैंने भी कई पीढ़ियों में से देख लिया कि कहाँ से ये शुरुआत हो रही है। मेरे पिताजी बहुत अच्छा लिखते थे, उनके बाद भी मैंने देखा कि मैं आई उस पीढ़ी में, मेरे बाद और छोटे बच्चे आ रहे हैं, तो हाँ परिवर्तन आ रहा है। तो परिवर्तन जरूरी है। जैसे अमृता प्रीतम ने लिखा, उनकी जो पिंजर वगैरह, सॉरी अमृता प्रीतम ने पिंजर कहानी लिखी थी, तो क्या है उसमें? मौन है, सहन शक्ति चाहिए। लेकिन आज की नारी में आवाज बदल रही है, हम प्रश्न उठा रहे हैं क्यों, ऐसा क्यों, और हमारी भूमिका क्या है? तो परिवर्तन में तो इसको आना ही है। बहुत खूब रंजन दीदी, मैं समझती हूँ आपने जो कम समय में भी इतनी गहरी, जो आज का टॉपिक ही हमारा है शब्दों का संगम, तो शब्दों से आपने बखूबी उसको समझाया। विकास जी, मेरा सवाल आपसे, हम बात कर रहे हैं कविताओं की, दोहों की, छंद की। साहित्यकारों को कितना ज़रूरी है ये समझने के लिए, क्योंकि विधाएं तो और भी बहुत सी हैं। जैसे मैं खुद लघु कथाएं लिखती हूँ और उसके बारे में मैंने बहुत दूर अध्ययन किया। लिखती तो शौकिया थी, लेकिन लगा कि जिस चीज़ को आप कर रहे हो उसको अच्छे से समझ लो। तो और भी वो कौन सी विधाएं हैं जो हमारे जितने भी साहित्यकार हैं, आज हम देख रहे हैं बहुत सारी बुक्स बहुत जल्दी पब्लिश हो रही हैं, लेकिन बुक को विधिवत लाने के लिए हम और क्या क्या अपने साथ होमवर्क करें। होमवर्क शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि मुझे एक लाइन बहुत सुंदर लगती है, अपने ऊपर काम करना। तो अपने ऊपर साहित्यकारों को क्या काम करना चाहिए जिससे ये परंपरा और ये परिवर्तन और ये विधाएं सब जीवित रहें और हमारी आने वाली अगली पीढ़ी तक सही सलामत धरोहर की तरफ पहुँचे? ये मेरा सवाल है। तो देखिए, परंपरा मतलब हमारा कल्चर जो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, उसको हमें it is very well said that change is the nature of the universe. So if we don't change with the time, we'll be obsoleted. So whatever logical it is, so we have to tell people, हमें लोगों को उन्हीं की तरीके से वो चीज़ों को समझाएंगे तो ही उनको वो बात समझ में आएगी। क्योंकि आज का ज़माना जो है, आज के जो लोग हैं वो पुराने उस समय को जो कि हमारी धरोहर है, धरोहर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी पुराने समाज से ही हमारी ये प्रथाएं जिसको आज हम कल्चर कह रहे हैं वो उस समय बनाया गया था, उस समय उनकी रचना हुई थी, चाहे वो रामायण है, महाभारत है
ये सब जो चीज़ें हुई, ये सब जो घटनाएं हुई, ये इसलिए हुई, ये ऊपर वाले का ही कोई उनका कोई ये लगा लीजिए कि एक हमें शिक्षा देने के का एक माध्यम रहा होगा, ताकि उनको पढ़कर हम एक कल्चर का एक उस चीज़ को हम एक कल्चर की तरह अपने जीवन में अपनाएं। तो अब आज का जो मॉडर्न ज़माना है वो उसको पुरानी विचारधाराओं की तरह ना समझे। उसके लिए हमें आज का जैसे जो डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया हो गया, उसके तरीके से वो लोग किस तरीके से उनको, जैसे आजकल इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट इंफोटेनमेंट। Like we give people information, we give them knowledge through entertaining them. That will give them, वो उनके लिए ज़्यादा इजी होगा डाइजेस्ट करना, उनके लिए ज़्यादा इजी होगा उस चीज़ को समझ पाना और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर पाना। बिकॉज हमें आज उस चीज़ को उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आने वाले 50 साल तक फिर उसको सस्टेन कर पाएंगे। बहुत सही जी। मनोज शुक्ला जी, अगर मैं आपसे कहूँ एक लाइन में आज के टॉपिक को समअप करें कि शब्दों का संगम परंपरा से परिवर्तन तक, तो आप एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको छंद ज्ञान नहीं है, आप छंद में नहीं लिखना चाहते तो लय को पकड़िए, और अगर आप लय को भी नहीं पकड़ सकते तो साहित्य की तमाम अन्य विधाएं, जैसे आप लघुकथा लिखते हैं, वो कहानी लिखता है, कोई निबंध लिखता है, उनमें लिखिए। कविता लिखना ही आवश्यक नहीं है, साहित्यकार बनने के लिए कवि होना जरूरी नहीं है, अन्य विधाओं का आप चयन करें। टॉपिक बहुत गहरा है, बहुत देर तक इस पर डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ क्योंकि समय की सीमा है। और आने वाले सभी साहित्यकारों से हाथ जोड़कर हम सभी की ओर से ये निवेदन है कि आप अपनी परंपराओं को ठीक से समझें, संजोएं और आने वाली जनरेशन तक उसे पास ऑन करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। I request Suneet Madan and Ankit Nagpal to come up on the stage for the launch. मैं मनोज जी को रिक्वेस्ट करूंगी आने का। उन्होंने फॉरवर्ड लिखा है संतोष जी की किताब का। एंड संतोष जी कहाँ पर हैं? आगे। तो जो हमने अपना क्षितिज एंथम बनाया, ही इज द राइटर। और मैं पब्लिशर को बुलाना चाहूंगी जो अचानक गायब हो जाते हैं। आओ जल्दी। देवव्रत दुबे, ही इज आवर पब्लिशर। प्लीज मिसेस यादव, प्लीज। And on the count of 3, 2, 1, go. The title of the book is Rahil Love. And now I request Santosh ji to give a briefing about his book. Respected guests and dear citizens, अभी तक पता लग ही गया है कि ये मेरा पहला बुक है, डेब्यू लॉन्च, एंड इसीलिए कहीं ना कहीं मैंने किसी को डाउट न हो इसलिए किताबें भी लिख दिया पहला सफ़र, और ये पहला कदम है मेरा। एंड कई सालों पहले जो ये सफ़र मेरा शुरू हुआ वो केवल मोबाइल, लैपटॉप, किताब, नोटबुक के अंदर ही दबा रह गया था। एंड थैंक्स टू लॉट ऑफ पीपल, कई लोग जो मुझे मेरे इस राह में, मेरे इस सफ़र में मिलते गए, जिन्होंने कई तरीके से मुझे सराहा और प्रेरणा दिया, और साथ में एक और मंच में मैं जब जुड़ा क्षितिज के, जहां मुझे ये भरपूर मोटिवेशन मिला कि मैं अपने पोइट्री को एक किताब के रूप में आप सबके सामने पेश करूं, तो आज वो जो एक सपना होता है एक पब्लिश ऑथर बनने का, वो एक सपना आज मेरा साकार हुआ है। उसके लिए जो यहाँ शामिल हैं, इंक्लूडिंग रंजीता मैम, एंड जो यहाँ शामिल नहीं हैं, उन सबको मैं आभार और धन्यवाद देता हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए अपने इसमें से जो कुछ चुनिंदा पोएम्स के अंदर से एक पोएम आपको मैं सुनाना चाहूँगा। ब्रॉडली मेरा ये जो बुक है
ये कविता का जो संग्रह है ये 4 भागों में है। एक राहे ख्याल, जिसमें मैंने अपने ख्याल जो भी मुझे मन में आया वो मैंने लिखे। दूसरा है राहे हौसला, जिसमें मैंने कुछ मोटिवेशनल पोएम्स लिखी हैं। एक राह रोमानी है, कुछ रोमांटिक इंक्लिनेशन के पोएम्स हैं। चौथा राहे फलसफा, जो जिंदगी के कई सारे पहलुओं को उजागर करते हैं। और लास्ट में राहे मुस्तकबिल, जो मेरे आगे आने वाले सफर में जो पहला सफर के आगे का कदम होगा वो उसके अंदर शामिल होंगे। तो मैं ये जो एक छोटा सा एक पोएम है, मैं वो आप लोगों को इस मंच पर सुनाना चाहूँगा। 2 बड़े अच्छे से शब्द हैं, मिसाल और कमाल। ये किसी कन्वर्सेशन में किसी ने जब बात छेड़ी तो मुझे लगा ये दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, मिसाल और कमाल। इनको मैंने एक कविता में बांधने की कोशिश की, तो पेश कर रहा हूँ। बहते अश्कों की हंसी उड़ाओ तो मिसाल कहलाए, बहते अश्कों की हंसी उड़ाओ तो मिसाल कहलाए, सरेराह गिरकर भी मुस्कुराओ तो कमाल कहलाए। अपने ही ठोकर से रास्ते बनाओ तो मिसाल कहलाए, अपने ही ठोकर से रास्ते बनाओ तो मिसाल कहलाए, उन रास्तों को मंजिल से मिलवाओ तो कमाल कहलाए। तेज रफ्तार में भी ठहराव लाओ तो मिसाल कहलाए, तेज रफ्तार में भी ठहराव लाओ तो मिसाल कहलाए, ठहर कर भी आगे बढ़ते जाओ तो कमाल कहलाए। घनी गहरी नींद से जगाओ तो मिसाल कहलाए, घनी गहरी नींद से जगाओ तो मिसाल कहलाए, जागने के बाद ख्वाब दिखाओ तो कमाल कहलाए। ढेरों ख्वाब पलकों में सजाओ तो मिसाल कहलाए, ख्वाबों को हकीकत बनाओ तो कमाल कहलाए। कोशिश में भी कशिश लाओ तो मिसाल कहलाए, कोशिश में भी कशिश लाओ तो मिसाल कहलाए, तमन्नाओं पर लगाम लगाओ तो कमाल कहलाए। जीत पर भी न कभी इतराओ, जीत पर भी न कभी इतराओ तो मिसाल कहलाए, मगर हार का भी जश्न मनाओ तो कमाल कहलाए। गम को खुशियों से गुदगुदाओ तो मिसाल कहलाए, नाउम्मीदी को हौसलों से हराओ तो कमाल कहलाए। और आखिरी लाइन के अंधेरों में अगर चिराग जलाओ तो मिसाल कहलाए, अंधेरों में अगर चिराग जलाओ तो मिसाल कहलाए, बन के मनारा खुद जगमगाओ तो कमाल कहलाए। तो ये और इससे जुड़ी कई और सारी कविताएं इसमें हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को इसमें जो कलेक्शन है वो पसंद आएगा। एंड थैंक्स एवरीवन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय जर्नी। मेरे इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ आपको ये किताब पढ़ने का मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं कुछ पोएम्स आपके दिल को छू पाएंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. Now we move towards the next book launch for the day, and the author is Priyanka Mathur. I request Priyanka to come up on the stage, and to reveal the book, I request Suneet Madan, Dr. Prerna Sinha, and Umang Sareen, along with Ranjita ji, to come up on the stage for the launch. On the count of 3, 2, 1, and go. जोरदार तालियां प्रियंका की दोस्त लोग बजाओ। और वो अब क्या करना है प्रियंका जी के लिए? और जोर से तालियां। And now we move ahead to our next engaging segment of the day. It's our second panel discussion.
टेक्नोलॉजी बदल रही है दुनिया, पर क्या क्रिएटिविटी भी? Well, the topic is AI-powered writing like ChatGPT and Gemini impacting traditional writing? Let's explore the intersection of technology with creativity. Joining us for this engaging discussion are Dr. Suneet Madan, an acclaimed author, Rakhi Unmani Singh, a creative artist known for expressive work, and Azim Uddin, an author who brings fresh perspective to contemporary writing. And the moderator for this panel is Miss Charu Kalra. प्रेरणा जी को जाना है, तो मैं आई रिक्वेस्ट डॉक्टर प्रेरणा सिन्हा टू बी ऑन स्टेज प्लीज. कंग्रेचुलेशंस रंजीता, 7 साल हो गए ये सब करते हुए. 2018 तुमने शुरू किया था ये सब. बहुत ही अच्छा लगता है तुम्हें देखकर. शी इज द प्राइड ऑफ आवर फैमिली. शी इज अ ग्रेट प्राइड. प्लीज आई वांट अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रंजीता. मतलब देखते देखते इतने अच्छे लेवल पे करने लगी हो सारी चीजें. कैसे करती हो? अभी बात हो रही थी आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ्स किस तरह से अकेली रहती हैं, अकेले सब कुछ करती हैं. और मैंने हमेशा ये मिसाल देखा है रंजीता में. मैं कहती हूँ 6 महीने के लिए पता नहीं कहाँ रह रही थी, अंशुल बाहर है, कैसे मैं वहाँ से भी वो कुछ कुछ कर लेती थी. 1 साल भी नहीं गया जब इसने नहीं ऑर्गेनाइज किया हो. सो कंग्रेचुलेशंस टू यू, कंग्रेचुलेशंस टू योर टीम फॉर दिस कमेंडेबल जॉब. थैंक यू. ये मेरी बुआ सास है एंड शी इज अ प्रोफेसर एट AISD दिल्ली यूनिवर्सिटी. और हमारे क्षितिज को फर्स्ट चांस जो था, वी हैड डन आवर पोएट्री मीट एट आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज बिकॉज ऑफ हर. सो ये पाथ ब्रेकर. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट टू अस. Thank you Team Kshitij and Mrs. Ranjita once again for this beautiful opportunity. And I have the most amazing and incredible panelists here. Welcome. And the panel today will explore one of the most sought after topics, a matter of big debate and concern. It's about the impact of AI on traditional form of writing and creativity. Now before I initiate the discussion, I would like to read something from this book because I got hold of this book yesterday while I was traveling from Lucknow. And I came across this beautiful quote which says that judge a man by his questions and not by his answers. A very popular quote. आप लोग सोचेंगे कि मैं ये quotation यहाँ क्यों पढ़ रही हूँ? It's a quote by a French philosopher Voltaire, but actually not. मतलब आप इंटरनेट अगर गूगल करेंगे Goodreads, Forbes.com में, this quote has been attributed to the French philosopher Voltaire, but it is actually not by him. It is by another French politician, a soldier, Pierre-Marc Gaston. And so this is what I believe AI is. हेलो, तो दिस इज़ वैभव सिंघल और मैं यहाँ क्षितिज का एक मेंबर भी हूँ और क्षितिज के इवेंट में आया हूँ. और क्षितिज 7 साल से ये आज हमारा 7th ईयर का हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे काफ़ी सारे बुक लॉन्चेस हैं और कुछ सेशंस हैं जिसके अंदर बहुत सारे पैनल्स में बहुत सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं जो अलग अलग बारों में अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं. आप अगर इसमें बडिंग पोइट्स हों या आप ग्रूमिंग के लिए या आप रैम्प वॉक के लिए या फैशन इंथुजियास्ट कोई भी हों, आप एक बार आ सकते हैं. क्षितिज को चेकआउट ज़रूर करिएगा. एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको ग्रोथ मिलना पक्का है, श्योर है, ट्रस्टवर्दी है. प्लीज़ क्षितिज को ज्वाइन करिएगा. नमस्कार, मैं हूं केवल और इस वक्त मैं हूं क्षितिज 2025 के प्रोग्राम में. और ये क्षितिज जो लिटरेचर फेस्टिवल है पिछले कई सालों से मैं लगातार देख रहा हूं और उसके बाद एक ऐसा समय आता है कि मैं इसमें शामिल भी होता हूं. और एक बड़ी अच्छी बात है कि समय के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, बहुत सारे लोग अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख गए हैं और एक्सप्रेस करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल जाए तो बात ही क्या है. अगर हम देखें तो क्षितिज वैसा ही प्लेटफॉर्म है जो हर किसी को अपने आप को एक्सप्रेस करने का बड़ा ही सुनहरा मौका दे रहा है. जो लोग भी इससे जुड़ रहे हैं वो हमेशा के लिए ही जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये एक त्यौहार है, ये एक फेस्टिवल है जो हर साल आता है, दिसंबर के महीने में आता है.
thanks Sangam News, Sangam Network for covering this event. This is Kshitij Literature Festival Season 7, which we are doing at Amora Hotel. And today we had book launches, panel discussion, and a discussion of books Sainik Patniyon Ki Katha aur Vyatha. Our chief guests were Arpita Bansal, and celebrity guest was Chaitanya Kanai ji, who was present here in this podium. And then we had guest of honor Vanna Yadav ji, and lot of things were going on. So tomorrow we are having Indian iconic poet grand finale, and hope to have a blast over there. The winner will be taking away the trophy and 10,000 rupees cash prize. And hope we are working for budding poets, and hope that each poet we Kshitij able to reach all the poets of India, all the budding poets. So may I request my team, Ansh, to be here. And we are the pioneer members. So Ansh. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंश राजोरा, आका फ़कीरा, फ़कीरा मेरा पेन नेम है, और हम आज हैं क्षितिज लिट फेस्टिवल में, जो सीज़न 7 कंटिन्यूसली 7 सीज़न से हम लोग जुड़े हुए हैं. आई एम वन ऑफ फाउंडिंग मेंबर of Kshitij, and it's being a privilege to be here always, because we are like a family here. और क्षितिज का मंच ही ऐसा है जो एक बार जुड़ता है वो हमेशा के लिए जुड़ जाता है. विश यू ऑल द बेस्ट, लॉन्ग लिव क्षितिज. थैंक यू. जी नमस्कार, मैं वंदना यादव हूँ, साहित्यकार, मोटिवेशनल स्पीकर और समाज सेविका. क्षितिज से मैं लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ. ये तीसरा बार है कि जब मैं लगातार क्षितिज के कार्यक्रमों में आ रही हूँ. भारत भर के साहित्यकारों को, कवियों को क्षितिज ने प्लेटफॉर्म दिया है. रंजीता बहुत बड़ा काम कर रही हैं क्षितिज के साथ मिलकर, बल्कि वो क्षितिज की संस्थापिका हैं और उसकी डायरेक्टर भी हैं. क्षितिज को इतना बड़ा काम करने के लिए जो बडिंग पोइट्स को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, महिलाओं को घर से निकाल कर वो उनको अपनी अलग पहचान बनाने का मौका दे रही हैं, इसके सब के लिए क्षितिज को मैं बहुत बधाई देती हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं भी कि वो लगातार ये जो उसने जोत जलाई है उस पर वो काम करती रहे. बहुत धन्यवाद. जय हिंद. नमस्कार, मैं पारुल जैन. मैं क्षितिज से पिछले 4 साल से जुड़ी हूँ और ये मेरा चौथा साल है क्षितिज लिट फेस्ट में. और यहाँ आके हमेशा एक फैमिली जैसा लगता है. एक अलग ही कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया है जब मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पोइट्री पढ़ी थी और आज जो मैं पोइट्री पढ़ती हूँ उसमें बहुत डिफरेंस है. क्षितिज और रंजीता मैम ने सच में हमें एक नया आसमान दिया है. सो थैंक यू सो मच क्षितिज एंड रंजीता मैम. मेरा नाम मुकेश भटनागर है. क्षितिज से मैं पिछले 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ. इट हैज़ बीन ए लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म फॉर मी. आई वॉज 65 व्हेन आई केम इन द फोल्ड ऑफ क्षितिज, फाउंडेड बाय रंजीता साहे आशीष. तब से आज तक 7 साल में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लिखा, और ऐसा एहसास होता है कि हमारा जो सोच है, हमारी सारी वो प्रकृति हमारी जो है बदल गई है. काफ़ी समय से लोगों से हम मिले, जुड़े और पाया कि हम साहित्यिक रूप में हम एक ही परिवार है, और इसका श्रेय सारा रंजीता साहे जी को जाता है. मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसकी प्रगति के लिए, इसके उत्थान के लिए, और एक दिन ये विश्व में इसका नाम हो, ऐसी मेरी अभिलाषा है. धन्यवाद. Hello, I am Pooja Agarwal, and I'm a part of Kshitij since December 2022. Or during this journey, it has been very inspiring, very motivating, very positive for me. मैंने बहुत grow किया है in terms of writing, in terms of getting out of my diary. I was a final participant of 2022 IIP Season 5. उसके बाद से आज तक यहाँ की जर्नी है कि I am a part of it as a team member, as Kshitijian, a proud Kshitijian. And उसके बाद मेरी यहीं से मेरी फर्स्ट बुक लॉन्च हुई है, अस्तित्व का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन ऑफ एग्जिस्टेंस. और दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर आई हैव ग्रोन एज अ राइटर, एज अ पोएटेस, एंड बिकम ऑथर. एंड आई रियली थैंक दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म Kshitij and Ranjita for making all budding writers and poets, giving us a platform to come forward and share our poetry to the world. Thank you so much, Miss Ranjita and Kshitij, for
being there for us, and I'm looking forward for more of it. Thank you so much. I'm Ruchika. I really want to thank Ranjita for welcoming me in Kshitij and giving me this platform. मैं पहले से लिखती थी लेकिन कभी ये हौसला ही नहीं मिला. ये क्षितिज का प्लेटफॉर्म देने के लिए दिल से शुक्रिया. वंस अगेन थैंक यू रंजिता. हेलो, मैं मनिका वर्मा. नमस्कार. आज क्षितिज अपना 7 इयर्स बर्थडे मना रहा है और क्षितिज के साथ जुड़ के साहित्य में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है. अभी मेरी बुक भी आई है मन के मौसम, और रंजीता सहाय आशीष ने उसमें काफ़ी हेल्प की और उसकी वजह से मैं आज एक ऑथर बन गई हूँ. उसके लिए थैंक यू क्षितिज. और इनके साथ जुड़ कर के दिन प्रतिदिन ग्रोथ हो रहा है हमारा, उसके लिए थैंक यू सो मच. मैं प्रियंका माथुर और ये क्षितिज में मेरा 7th ईयर है और यहाँ पे रहते रहते मैंने शौक में अपनी दूसरी बुक भी आज लॉन्च करती है, जहाँ रोशनी रह जाती है. क्षितिज के लिए मैं बहुत आभारी हूँ क्योंकि एज ए बडिंग पोएट मैंने यहाँ पे शुरू किया था और आज मैं इतना कॉन्फिडेंटली यहाँ पे सब काम कर रही हूँ कि मुझे खुद पे यकीन नहीं आ रहा है. तो आप लोग आएँ और जुड़ें क्षितिज के साथ. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत नमस्कार. मैं यहाँ क्षितिज से जुड़े मुझे 4-5 साल हो गया है और हर बार फेस्ट में आती हूँ. ये मेरा पहला मौका है जब मैंने यहाँ पर अपनी बुक पब्लिश करवाई है. तो ये बुक है मेरी सरहद के खत, जिसको क्षितिज और उनकी टीम ने मिलकर डिज़ाइन किया है और मैं पूरी आशा करती हूँ कि ये आप सभी को पसंद आएगी. और क्षितिज और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार देती हूँ जिन्होंने मेरी बुक को इतना सुंदर आकार प्रदान किया है और अग्रिम टाइम के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ. धन्यवाद. समय के बदलते हुए इस परिवेश में जहाँ भाषा को लेकर आज बहुत सारी समस्याएं हैं, AI के इस दौर में भाषा का बहुत पतन होता जा रहा है, तब साहित्य सेवा एक बहुत बड़ा माध्यम है सब तक अच्छी भाषा का उत्थान पहुंचाने के लिए. उसके लिए मैं क्षितिज की पूरी टीम को, खास करके रंजीता सहाय आशीष को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूं. उनका आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने इतना अच्छा मंच प्रदान किया है आज के साहित्यकारों को. तो आने वाले समय के लिए आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं. आपका मंच दीर्घायु हो. नमस्कार, मैं ईशा भारद्वाज और आई एम ए प्रिंसिपल और मैं राइटर भी हूँ, पोइटिस हूँ और सोशल वर्क करती हूँ और कथक डांसर भी हूँ. और आज मैं यहाँ पर आई हूँ क्षितिज के इस बहुत ही खूबसूरत इस मंच पर, जहाँ पर सच में हर एक चीज़ को जिस तरह से मैं इंजॉय कर रही हूँ वो एक अलग ही एक लेवल सेट कर रहा है. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी रंजीता जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे एक पार्ट बनाया यहाँ का. उनकी जो बुक लॉन्च हुई है जिसमें उन्होंने अपने 15 चैप्टर्स उसमें डाले हैं, उसके बारे में वो बता रही थी, वो सुन के सच में मैं बहुत इमोशनल हो गई. और उनकी बात जो बहुत ज़्यादा मेरे दिल में जो इफ़ेक्ट करी, वो उनका कहना कि एक ऑर्डिनरी जो होते हैं जो औरतें, वो बहाने लगाती हैं कि हमारे पास में टाइम नहीं है, लेकिन उसी जगह पे जब एक आर्मी वाइफ जो इतने सारे सेक्रीफाइसेस करती है, अपनी फैमिली में रहती है और रंजीता की तरह इतना आगे बढ़ रही हैं और दिन पे दिन एक नई ऊंचाइयों को छू रही हैं, ये सब सुन कर के एक अलग ही एक माहौल सेट हुआ है. और मुझे सच बता रही हूँ बहुत अच्छा लगा यहाँ करके. और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी रंजीता जी का कि बस वो ऐसे ही बढ़ती रहें और हमें बुलाती रहें और हम आते रहेंगे. थैंक यू सो मच.